Hello, my dear students. Welcome back to yet another lecture on electrostatic potential and capacitance, class 12 physics. So, this is lecture number 5, and today we are going to discuss on some numericals on based on electric potential and electric field, and then we will discuss on the relationship between electric potential and electric field in case of non-uniform electric field. Okay, so in the last video, lecture number 4, where I had told that we can find out potentials using formula delta V equals to E dot dr. The relationship between potential and electric field is that delta V equals to E dot dr. So we had done some numericals on lecture number 4. This is lecture number 5. So it is continuation of numericals on potential and electric field, and some more informations we will discuss about electric field and potential especially when electric field is non-uniform. Okay. Here is one question for you. What is the question? Electric field lines are given uniform electric field. Electric value is 25 volt per meter. Okay. And there is a triangle ABC. ABC 2 meter, 2 meter, 2 meter. We have to find out the potential difference between A and B. VA minus VB, VB minus VC, and VC minus VA. Okay, what? VA minus VB, VB minus VB minus VC, and then VC minus VA. Let us do. What is the formula? We have first one. Let us find out delta V. Okay. For which purpose? For the purpose of VA minus VB. Let us find out delta V. सबसे पहले तो हम डेल्टा V निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. उसके बाद हम देखते हैं A कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहाँ का पोटेंशियल कम होगा. For your kind information, let me remind you that potential decreases along the in the direction of electric field. Okay, or you can say electric field is always in the direction of decreasing potential. So based on that fact, we can find out at which point there will be more potential, at which point there will be less potential, and we can calculate. Value of electric field is given. So delta V equals to E dot delta R. ठीक है? E dot delta R. That means now let us write E is how much? 25. And dr, this is A to B, 2 meter into cos E dot dr. This is dr vector, and this is electric field. What is the angle? ये एंगल कितना होगा? अच्छा ये बताइए, ये एंगल कितना है? दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये एंगल 60 डिग्री है. ये कितना है? 60. ये कितना है? 60. तो ये कितना हो गया? 30. दिस इज 30 डिग्री. ओके, बिकॉज दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर. सो दिस इज 30 डिग्री. तो cos 30. यू कैन आप ये भी ले सकते हैं एंगल, और ये भी ले सकते हैं. एक्चुअली एंगल ये है, दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सेम है. दिस इज 30. सो cos 30. व्हाट इज द आंसर? 50 into root 3 by 2. 50 into root 3 by 2 कटाइए 25. तो कितना आ गया? 25 root 3. Okay. Therefore, VA minus VB equals to VA is at lower potential, because towards the electric field the potential will decrease. A is lower potential and B is higher potential. So lower minus higher will be negative. Okay, so negative 25 root 3.
So it is very easy to find out. First we can find out magnitude of delta V, minus sign delta V, magnitude. So minus sign is not used here, otherwise delta V equals to minus E dot dr. डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वाला VB माइनस BC, VB माइनस BC के लिए हम डेल्टा V निकालेंगे, डेल्टा V E डॉट डेल्टा R, E कितना है 25 dr कितना है, dr कौन सा है, VB माइनस BC, VB माइनस BC 2 मीटर, 2 मीटर इंटू दिस इज dr इज दिस, dr इधर है ना डेल्टा r, ये डेल्टा r हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो 90 डिग्री cos 90, cos 90, तो ये हो गया 0। दैट मीन्स VB माइनस BC इक्वल्स टू 0। इसको हम ये भी कर सकते हैं, VB इज इक्वल टू BC। B का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि एक ही लेवल पे है, इधर नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे है। दैट मीन्स BC इज गोइंग टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके, हियर हियर यहाँ हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा और B और C का भी सेम होगा, तो VB इज इक्वल टू BC हो गया ये। ओके, एंड देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, डिफरेंस तो 0 हो गया, लेकिन VB इज इक्वल टू BC हो गया। अच्छा, थर्ड वाला क्या है, BC माइनस VA, तो BC माइनस VA के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा V मॉड्यूलस इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर इक्वल्स टू E इज 25 इंटू, जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे उसके उस टाइम जिसका हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, E डॉट डेल्टा R मीन्स E डी डेल्टा R cos थीटा होता है, तो 25 इंटू dr, व्हाट इज दिस, CA नो, CA 2 मीटर इंटू, अगेन दिस इज 30 डिग्री, दिस इज अगेन 30, 60, 30, 90, okay, so cos 30, the same answer, same answer, 50 by root 3 by 2, 25 root 3, 25 root 3 बोल्ट हो गया, ये भी यहाँ पे बोल्ट लिख सकते हैं हम लोग, बोल्ट है ना। अच्छा, ये बोल्ट हो गया। अच्छा, now C to A, okay, C is at higher potential and A is at lower potential, so it will be positive, so VC minus VA, C हायर पोटेंशियल पे है और A क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो हायर माइनस लोअर पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल्स टू पॉजिटिव 25 रूट 3 वोल्ट, ये हो गया आंसर। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट कम that find out the potential difference in that electric field if the electric field is given and distance between any 2 point is given. Okay, so we have to use delta V equals to minus E dot dr delta R, and in order to find out the magnitude of delta V, है ना, delta V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको वो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करो, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, है ना, उसके बाद देखना ये कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है। अगर हायर से लोअर को माइनस कर रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, लोअर से हायर को माइनस कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग। सो दिस इज द थिंग वेयर वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, now we will go for finding the relationship between electric field and potential when electric field is non-uniform. Okay, तो मैं हटा देता हूँ। So relationship between potential and electric field when electric field is non-uniform,
उसमें क्या आएगा, जैसे इसमें डेल्टा वी आता था, अच्छा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर है, उसमें ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर होता है फॉर्मूला, है ना। इससे पहले वाले उसमें हम लोग डिस्कस किया था। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या होता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, या तो मान लो एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे आ गया, हाँ, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे करके ऐसे आ गया, समथिंग लाइक दिस। कहीं भी स्पेसिंग कम है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है गैप, हाँ यहाँ पे ऐसे है, फिर ये ज़्यादा गैप हो गया ऐसे। Spacing between the field lines are not same. This is also non-uniform electric field. Uniform कैसा होता है, एकदम पैरेलल, स्पेसिंग सेम होगा, सेम स्पेसिंग। If the spacing between the lines are same, then it is uniform. Okay, this is the uniform. This is non-uniform. So this is non-uniform, and this is uniform. ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने 2 पॉइंट ले लिया ऐसे, इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मैंने एक स्पेस ले लिया, एक जगह ले लिया, और उसमें मैं 2 पॉइंट रख देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, फिर और छोटा सा dr, तो मैंने एक छोटा सा dr लिया, ये जो है dr, इसका जो पोटेंशियल है ये मान लो dv है, ठीक है, dv है। तो यहाँ मैंने मान लिया लेट A and B be any 2 points in the non-uniform electric field. Consider dr वेक्टर एज, और इसका टोटल, इसका जो डिस्टेंस है ना, तो इसको मैं dr मान लेता हूँ, dr है ये dr, और इसका टोटल डिस्टेंस है डेल्टा r, यहाँ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डेल्टा r का वेक्टर इधर ऐसे, ठीक। छोटा सा मैंने dr ले लिया, छोटा सा dr, तो कंसिडर dr एज स्मॉल displacement element having छोटा सा लिया, having, मान लो अभी छोटा सा यहाँ पे लिया, अब मान लो ये ऐसे है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा दिया ले लिया, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पॉइंट जैसा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो यहाँ अगर ऐसी एक ही पॉइंट का हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसी एक पॉइंट का बात करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, है ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो कंसीडर dr एज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट हैविंग
having small potential difference dV. Therefore फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अच्छा हम ये करते हैं, पोटेंशियल dV इज इक्वल टू dW बाई एक्सटर्नल फोर्स बाई स्मॉल डी, इसका बाई क्यू कर देते हैं, क्यू कर दिया तो आ जाएगा हमारा dV इज इक्वल टू ओपन एक्सटर्नल फोर्स ना, तो माइनस क्यू ई, this E vector is constant for at this point, E vector is constant, okay, E is constant. This whole electric field is non-uniform, but at this point or this point electric field is constant, okay. तो ये QE हो गया, QE वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, QE डॉट dr कर दिया है ना, dr वेक्टर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्यू कैंसिल हो गया। हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्यू सोच लिया था, यहाँ पे एक छोटा सा क्यू सोच लिया था यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा क्यू ले लिया, उसको हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर डिस्प्लेस कर रहा है, हमने धीरे धीरे इधर इस तरफ माइनस क्यू ई का फोर्स लगा के उसको वॉक डन किया उसके ऊपर, तो पोटेंशियल आ गया, जैसे वॉक डन का आ गया पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वॉक डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, V dV equals to, or you can say delta V equals to W by Q, so dV is equal to dW, small work done by Q, so dV equals to what came, dV equals to minus E vector dot dr, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, छोटे से पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसको ए से बी तक अगर लाना है तो डेल्टा V ए टू बी अगर करना है तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर ए टू बी, और यू कैन से माइनस ई वेक्टर डी आर वन टू आर टू, वेयर आर वन मान लो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, देखो तो ओरिजिन से ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है, और ये बी का जो है ये R2 है, इस तरह से ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स A to B, है ना, R1 to R2, दिस इज द फॉर्मूला। सो टोटल डेल्टा V बिटवीन A and B, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is found out to be minus of integration of E vector dot dr vector, where E vector is supposed to be constant for dr, इसको कांस्टेंट लेंगे और dr को हम इंटीग्रेट करेंगे, dr तो ये पूरा ये भी आ जाएगा, डेल्टा r आ जाएगा, ओके, सो वी कैन राइट दिस वन R2, जब जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर R1 टू R2, ओके। So okay, now application of this formula, how to find out, how can we find out इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम सीधा माइनस डेल्टा V बाई डी आर नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज डॉट प्रोडक्ट, देयर इज डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है एंगल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है,
तो हम किस एंगल के आधार पर इसको हम कौन से एंगल के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर करेंगे। हाँ, एक हो सकता है कि अगर सीधी लाइन में है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, 0 डिग्री है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, एक सर्टेन एंगल हमेशा मेंटेन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो cos 0, अगर cos 0 है या cos 180 है, वहाँ पे हम डेल्टा वी बाई डेल्टा आर कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू -1 या तो +1 होता है। cos 0 का +1 होता है और cos 180 का -1 होता है, इन दैट केस ओनली। बट अदरवाइज इन डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो उस टाइम 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ हम डिस्प्लेस करते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हो रहा है। That's why we cannot do directly delta V by delta this one, sorry, इसको नहीं dV, ये dV हो जाएगा, dV by dr हम लोग ये नहीं कर सकते। You cannot do directly, only for linear one, okay, not for this kind of any kind of displacement. So we have to go for Cartesian process. We have to take electric field in a Cartesian plane, 3-dimensional Cartesian plane. Okay, E x I cap, E y j cap, E z k cap, combination of these three. And position vector of any point, we can take any point, we can take r vector as x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay, now we will see the process how to find electric field using potential. उसके लिए कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला आएगा उसके लिए। तो व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? मान लो एक कार्टेशियन 3-डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, वहाँ पे एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लो यहाँ पे करता हूँ मैं, मान लो और जान लो। अच्छा, ये हो गया, ये जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रथम ये जान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इधर, ठीक। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, ई एक्स आई कैप, इस वाले को ई वाई जे कैप, इस वाले को ई जेड के कैप। वो सही है। At any point in the Cartesian 3-dimensional Cartesian system, at that point, suppose somewhere there is a charge, और वो चार्ज की वजह से 3-डायमेंशनल फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। और उस चार्ज के 3-डायमेंशनल फिगर में कहीं भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, सोचो वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जेड। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट is supposed to be E x I cap in the direction of x axis, E y j cap in the direction of y axis and E z k cap in the direction of z axis. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E x I cap प्लस E y j cap प्लस E z k cap।
अब इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो उसी पॉइंट मान लेते हैं ना, ये पॉइंट मान लो या कोई दूसरा पॉइंट मान लो ऐसे। तो इसका जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट पी है, इसको हम एक्स वाई जेड अगर मान लेते हैं, हाँ, दोनों बार एक ही टाइम में दोनों ये भी एक्स वाई जेड वेक्टर नहीं हो सकता है, मैंने सिर्फ दिखाया बस कि ये पॉइंट पी अगर यहाँ है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हम लोग लिखते हैं। सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी? हाउ टू रिप्रेजेंट? तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज एक्स आई कैप, इसका भी है ना, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। रेफर बैक टू क्लास 11 मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा। ओके, वेक्टर्स थोड़ा देख लेना। वेक्टर्स क्लास 11 का जो वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से ये लिया गया है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लो एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये 1 हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो dv है ई डॉट डी आर होता है कि नहीं, माइनस ई डॉट डी आर ये होता है। तो ये डी आर हमें चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is r vector, this one along x axis, y axis, z axis, but we need dr vector, small displacement vector. So differentiating on both sides, partially, partial differentiation करने से क्या आएगा? dr वेक्टर हमारा आ जाएगा dx i कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। बोलो सही है? dz के कैप। अच्छा, बहुत अच्छा। therefore dv फॉर्मूला बताओ। dv इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, वैल्यू पुट कर देते हैं। ई वेक्टर का क्या है? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर का कितना आ रहा है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो गया जेड। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई। ये dv है, ये भी dv है, i के साथ i मल्टीप्लाई, j के साथ j मल्टीप्लाई, k के साथ k मल्टीप्लाई, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। i डॉट j तो जीरो हो जाता है, j डॉट k भी जीरो हो जाता है, तो i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? ex dx i कैप नहीं आएगा, ex dx। ex dx प्लस j के साथ j, तो e y dy, k के साथ k, तो e z dz। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब क्या करेंगे? Again, differentiating partially
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या होता है, dy हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पहले x को x के रेस्पेक्ट में किया, बाकी 0 हो गया, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, dy आया, बाकी 0 हो गया, z के रेस्पेक्ट में किया, dz आया, बाकी 0 हो गया, फिर तीनों को ऐड कर दिया इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करने से ये हो जाता है डेल, dv का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो डेल हो जाता है, डेल v बाई डेल x। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, और बाकी dy और dz पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, dz भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, dy भी 0 हो जाता है, dz भी 0 हो जाता है, ओके, व्हेन वी डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया ई एक्स, कितना आ गया, माइनस डेल v बाई डेल एक्स, डेल एक्स मतलब पार्शियल, ओके। सिमिलरली है ना, ई वाई क्या आ जाएगा, फिर इसको दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सिर्फ y वाला बचेगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो ई वाई इक्वल्स हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल y। उसी तरह से ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेल v बाई डेल z, ये हो गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं ई कैसे निकालेंगे आप, ये निकालेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, अरे भाई डेल एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस ई वाई का माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, बस हो गया। अब इसका ई का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बट दिस बिकम्स क्वाइट लेंथी, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा को स्क्वायर करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे संभव होगा लेकिन बहुत दिक्कत होगा। अब इसमें देखो, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये चीज जब जरूरत पड़ता है, जब आंसर निकालने वाला होता है उस टाइम करना होता है। When we do the numericals based on this, at that time whatever numbers come, if they come in terms of numbers, then at that time we will do. Otherwise concept is, if you do this square plus this square plus this square under root, then you will get the magnitude of electric field. Okay, here no need to do, just we have to realize, हमको realize करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलता है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोटेंशियल का टर्म आ गया, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड स्पेशली टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग पोटेंशियल। ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा फील आएगा। सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 1 या कुछ भी करो, एग्जाम्पल पढ़ते एग्जाम्पल। मान लो v इक्वल्स टू कैपिटल V x प्लस y प्लस z। find electric field intensity at 0, 1, 1 and magnitude of E vector. We have to find electric field vector and magnitude of E vector. इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट पॉइंट, मैंने बोला था ये ऐसे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज गिवन है ना, 0, 1, 1 करके दिया है, तो 0, 1, 1 तो शायद यहाँ पे लाई करेगा 0, 1 और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 1 और जेड एक्सिस में फिर 1, ऐसे है ना। तो समझ गए, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पे पता चल गया। अगर 0, 1, 1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप तो नहीं होगा, जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग करेंगे, डेल वी वाला। तो थोड़ा ट्राई करो क्या होता है। we have v equals to x plus y plus z, okay। तो डेल v बाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, when we write del v by del x, only this term is differentiated, y and z will be 0, so it will be 1, x का 1 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस डेल v बाई डेल y, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, then this is also 1, ये y को 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू माइनस 1, माइनस डेल v बाई डेल z, ये भी माइनस 1 प्लस 0, z का होगा लेकिन इन दोनों का 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 1, एक्चुअली 0 प्लस माइनस 1 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, चलेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x आई कैप प्लस माइनस डेल v बाई डेल y j कैप प्लस माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। मतलब इसका कितना है, माइनस डेल v बाई डेल x का माइनस 1, तो माइनस आई कैप हो गया और ये माइनस जे कैप हो गया और ये माइनस के कैप हो गया, तो सबका माइनस 1 आया हुआ है। देयरफॉर अब आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सब कर रहे हैं, है ना। आई के पास जो है, जे के पास जो है, के के पास जो है ना कोफिशिएंट, उसको स्क्वायर करते हैं, तो 1 + 1 + 1 3 √3 हो गया, ये हो गया वोल्ट पर मीटर, और यू कैन राइट न्यूटन पर कूलम, एनीवन। ओके, तो वोल्ट पर, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिखना ही ठीक होगा क्योंकि ये वोल्ट के बारे में है, पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह से और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो v इक्वल्स टू
2x² प्लस 3xy प्लस z², ऐसे कुछ है, समथिंग लाइक दिस। फाइंड, हमसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3, ऐसे कुछ, फील्ड एट 1 2 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स यहाँ से निकाल देंगे बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 4x, 2x² का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और ये 4x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x², 4x, ये माइनस है तो माइनस 4x कर देंगे। अच्छा, फिर माइनस डेल v by del y. When we write del v by del y, we are going to differentiate only in terms of with respect to y, and other thing will be constant. तो यहाँ तो y नहीं है, यह 0 हो गया। यहाँ पर 3xy है तो 3x हो जाएगा constant, because with respect to y we are doing. So 3x constant, ये हो गया। y का क्या होता है 1, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है with respect to y। अच्छा, और ये यहाँ y नहीं है तो ये 0 हो गया। तो कितना बन गया, ये माइनस देना पड़ेगा हमको माइनस ब्रैकेट में, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, -3x आ गया। अच्छा, देखो यहाँ पे 0 1 1 किया था ना, ये पॉइंट यहाँ लगाना नहीं पड़ा, और यहाँ पर x आ जाता 2x i कैप 2y j कैप 3z k कैप, समथिंग लाइक दैट, है ना। वहाँ पे ये वैल्यू पुट करना पड़ता है, ऐसा आ गया, इसलिए नहीं करना पड़ता। अच्छा, माइनस डेल v बाई डेल z, मतलब क्या होगा इसका, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, इसका मतलब x एंड y विल बी कांस्टेंट 0, इसका 0, इसका भी 0, और इसका हो जाएगा 2z, ब्रैकेट दे दिया, माइनस दे दिया, इक्वल्स टू -2z। अच्छा, ये 3x, अच्छा y का 1 हो गया ना, ठीक है, इक्वल टू -2z। अच्छा, ये नहीं सोचना कि डेल v बाई डेल y है, x कहाँ से आ गया, x कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 3x हमारा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो रहेगा ना। और y का डिफरेंशिएशन तो हमने किया, y का डिफरेंशिएशन हमने किया, इसलिए वो 1 हो गया, अल्टीमेटली -3x आ गया। i कैप के साथ x y वाला टर्म भी हो सकता है, j कैप के साथ x भी हो सकता है, बट वो x क्या होगा, वहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। माइनस डेल, ये हो गया, ठीक है, ये तीनों आ गया। अब हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x i कैप प्लस ब्रैकेट में माइनस डेल v बाई डेल y j कैप प्लस ब्रैकेट में माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। वैल्यू डालते हैं, माइनस डेल v बाई डेल x -4x i कैप, और ये -3x j कैप, और ये -2z k कैप हो गया। अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट कितना में, 1 2 3, at 1 2 3, electric field at 1 2 3, this point, electric field at that point, so -4 into x का डाल देंगे 1 i कैप, -3 into फिर x का 1 j कैप, सॉरी हाँ x का ही है, लेकिन यहाँ पर y नहीं है ना, अगर y हो तो y को पुट कर देता, -2 into z का कितना है 3 k कैप। चलो करते हैं अभी, तो -4 i कैप
-3 -6 k कैप। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √(-4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 416 प्लस 9 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 61, √61 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है। सो इफ volt is given in variable x, y, z are the variables, variable voltage are there, obviously voltage will be variable only, and we will find out electric field at a given point। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वोल्टेज दिया हुआ है डी, जो पोटेंशियल दिया हुआ है वी x plus y plus z में, तो we have to find out, we have to do partial differentiation with respect to x, with respect to y, and with respect to z, and find out minus del v by del x, minus del v by del y, minus del v by del z. When we find minus del v by del x, at that time all the y terms and z terms will be 0. Okay, only the term having x will have some differentiation. Okay, यहाँ x का तो 1 होता है, इसलिए -1 माइनस है, -1 कर दिया, माइनस इस तरह से हो गया। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है ना, सब पहले पुट कर दिया सबका, तो ये आ गया, फिर मैग्नीट्यूड निकाल दिया, सेम प्रोसेस। ओके, अब एक सवाल करते हैं इसी के ऊपर। और एक सवाल, हाँ, if v equals to x square minus y square minus z square, ठीक है, ये हो गया। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर at 1 0 1 and e का प्लॉट। क्या करते हैं, del v माइनस del v बाई del x कितना आ जाएगा, -2x बाकी 0, अच्छा, माइनस del y, सॉरी, माइनस del v बाई del y इक्वल्स टू, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y, अच्छा, माइनस del z, सॉरी del v, यार del z का है, del v बाई del z इक्वल्स टू, इसका कितना हो जाएगा, प्लस 2y 2z प्लस 2z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस del v बाई del x I कैप प्लस माइनस del v बाई del y j कैप प्लस माइनस del v बाई del z k कैप। इसका पुट कर देते हैं -2x I कैप, इसका कर देते हैं, प्लस है ना या माइनस है, माइनस इसका आंसर प्लस में आया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y j कैप और इसका माइनस है, इसका प्लस में आया है तो प्लस 2z k कैप हो गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या बोला है, एट 1 0 1 इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा, यहाँ पर x की जगह पर 1, y की जगह पर 0, z की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है, -2 इंटू 1 I कैप प्लस 2 इंटू 0 j कैप प्लस 2 इंटू 1 k कैप। तो ये हो गया हमारा -2 I कैप, ये 0 हो गया, प्लस 2 k कैप।
therefore इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जे कैप नहीं है ना, जे कैप कुछ भी नहीं है, तो प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 4 + 4 8 रूट ओवर 8, it means 2√2 वोल्ट पर मीटर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बात खत्म हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है? उसको करना है। क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन? ऐसा है, v = x² y प्लस y² z, नहीं yz प्लस xyz, x² y प्लस yz प्लस xyz, नहीं इसको x y कर दे, बस हो गया, x² प्लस yz प्लस xyz, ऐसे कुछ है। पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, तो बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1 1 -2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड्यूलस, दिस यू हैव टू, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा ये बता, -del(v)/del(x) क्या हो जाएगा? ये यहाँ से 2x आ जाएगा, और इसको भी करना पड़ेगा, तो yz कांस्टेंट, yz इंटू 1 yz, तो -del(v)/del(x) हो जाएगा 2x प्लस yz, 2x प्लस yz। अच्छा, -del(v)/del(y) क्या हो जाएगा? इसलिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ का z आ जाएगा, और ये y को करेंगे तो xz आ जाएगा, है ना? यहाँ पे z प्लस xz, -del(v)/del(z) क्या हो जाएगा? जहाँ z है सिर्फ उसको करना है, ये वाला 0 हो जाएगा। जब z को करना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, y प्लस ये y प्लस xy, ये हो जाएगा -del(v)/del(z) का। उसके बाद x निकाल देना इस तरह से, ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना इसको, फिर ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, हो सकता है आई के आगे कुछ ब्रैकेट में कुछ आ जाए, से आगे कुछ ब्रैकेट में कुछ आ जाए, यहाँ ब्रैकेट में कुछ आ जाए, आने तो कोई बात नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट -1 1 -2, तो जैसे जैसे यहाँ पे आया वहाँ पे x y और z के बदले -1 1 और -2 पुट करके ऐसा वाला कुछ लाना है, ऐसे वाला। जब ऐसा वाला आ जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉडुलस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, नाउ if electric field is given in Cartesian form having all the three components, how to find potential difference between any two given points? Let us do that. Suppose electric field is given as 3x I cap minus 2y j cap plus z k cap, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइंड बोला है, फाइंड डेल्टा v बिटवीन 1 2 3 and 1 1 0, ऐसे बिटवीन 1 2 3 and 1 1 0। अच्छा, 1 to 1 कर दो, 1 to 1, ठीक है? बिटवीन 1 to 1 and 1 1 0। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, हाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मान लो
मान लो यहाँ पे इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो वेरिएबल है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो ये वाला है 3x i कैप, ये वाला है माइनस, ये तो नीचे हो जाएगा ऐसे, -2y j कैप, और ये वाला है, ये वाला कितना है z k कैप है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों है। तो ऐसा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम काफी बड़ा होगा, मैंने छोटा करके दिखाया, काफी बड़ा होगा। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में 2 पॉइंट ऐसे हैं, मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो ये पॉइंट हो गया 1 2 1, और ये हो गया 1 1 0। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे भरमार है, भरमार। तो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट हमने ले लिया है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है ये वेरिएबल वैल्यू। अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करेंगे, देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, अब इसको मैं देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये दोनों बीच का पॉइंट का निकालना है। We have to find potential difference between the two given points when electric field is given in terms of variable. तो क्या करेंगे, E equals to 3x I cap minus 2y j cap plus z k cap. So delta V equals to E dot dr, अच्छा माइनस ई डॉट डी आर। अगर ये मॉडल निकालेंगे तो माइनस नहीं आएगा। ई डॉट कितना है, 3x i कैप माइनस 2y j कैप प्लस z k कैप, कर दिया डॉट प्रोडक्ट। डी आर का क्या होता है, डी आर का dx i कैप dy j कैप dz k कैप। तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप हो गया, इसको मिटा दिया, ये हो गया। नाउ i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, so 3x into dx, just a minute। डेल्टा v ये नहीं होता है, डेल्टा v माइनस इंटीग्रेशन, तो ये a है, ये b है। मैंने दिखाया था यहाँ 2 पॉइंट है ऐसे, ये है कितना 1 2 1, और ये हो जाएगा 1 1 0। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा अगर डेल्टा v है तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट इस फॉर्मूले को, माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। ओके, तो ये अपना देते हैं, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, ये दोनों पॉइंट के बीच, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अच्छा, तो यहाँ मैं इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया, और ये मैंने इसको a to b बोल दिया, अभी भी a to b बोल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 to 1 to 1 1 0। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, 3x dx i डॉट i इज 1, देन माइनस 2y dy, फिर ये प्लस z dz, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अच्छा, जो माइनस भी है यहाँ पे, माइनस, अब करते हैं इंटीग्रेशन, 3x क्या होगा, 3x²
3x² माइनस 2 है क्या होगा 2y² प्लस z का क्या होगा z²/2। तो ये माइनस था ऐसे। अच्छा अब इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके लोअर लिमिट इज 1 to 1 and upper limit is 1, 0 1 1 1 0। नाउ माइनस, चलो इसको पुट करते हैं, 1 पुट करने से क्या आएगा 3 1² is 3/2 माइनस फिर 1 पुट करते हैं 2 2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा 1 पुट करने से, प्लस फिर वो 0 पुट करते हैं तो 0 हो गया ये ब्रैकेट, फिर माइनस अब नीचे वाला पॉइंट 1 पुट करने से 3/2 माइनस यहाँ भी अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2² 4 और या अगर 1 पुट करेंगे तो 1/2 ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं माइनस 3/2 माइनस 1 3 माइनस 2 1/2 ये हो गया 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 LCM 2 3 माइनस 8 प्लस 2/2 तो 2 प्लस 3 5 माइनस 8 -3/2 ये हो गया। अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 4 4/2 2 ब्रैकेट में ये 2 आ गया -2 तो -2 वोल्ट आ गया। डेल्टा V = -2 वोल्ट। फाइंड डेल्टा V between this and this, डेल्टा V का एक्सप्रेशन ये आ गया डॉट प्रोडक्ट से ये आ गया और लिमिट कितना है इसका देखना। डेल्टा V मतलब इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। छोटा dv क्या होता है, छोटा dv = माइनस E डॉट dr होता है। और बड़ा निकालना है तो डेल्टा V निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट E डॉट dr, ठीक है ये है। So -2 volt. In this way you can practice more and more as much as you can, and one question is in homework question to find out ये वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फाइंड करना है इस पॉइंट पे और उसका निकालना मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, relationship between electric field and potential when the electric field is non uniform। ओके तो मैं कुछ दूसरा ही कुछ सोच के आया था, फिर मैंने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल वाला थोड़ा सा डीपली चले जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बहुत सारा करना बाकी है, कोई बात नहीं है, हम लोग मैं तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो अभी मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये जो कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, how they are interrelated, how they can be used for each other, how we can find out electric field using potential, how we can find potential using electric field. So based on that there are some numericals. Okay, of course at the end of the chapter we will do the numericals of textbook exercise also for the board examination point of view. So I thought like this. So then when I checked once again what is to be done, so I found now the next topic will be equipotential surface in the video lecture number 6. Okay,
and after that, electrostatic potential energy. And electrostatic potential energy is very very important in this entire chapter. And later on, capacitance is also very important. So thank you so much uh, for today. Keep studying and all the best.